तो जो अभी डिस्कस हुआ है वो आप लोगों को जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था वो। हाँ आयुष बोलो। सर आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। पता ही नहीं, कुछ समझ नहीं आया, चले गए आप। ओके, कहाँ तक फर्स्ट डिस्कस हुआ है? फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड ही चल रही थी। अच्छा, उसके बाद नहीं हुआ। नहीं सर। ओके ओके, सो जस्ट लेट मी। तो भाई कोई भी इशू आए आप लोग मुझे अनम्यूट करके बता देना। ओके। स्टार्टिंग से डिस्कस करें। यस सर। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो वी वर टॉकिंग अबाउट वर्चुअल मेमोरी। सो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स की। तो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम में, चाहे वो कॉन्टिजियस हो चाहे नॉन कॉन्टिजियस हो, वी हैव टू पुट द एंटायर प्रोसेस इनटू द मेन मेमोरी। तो कोई भी प्रोसेस को अगर हमें रन करना है या एग्जीक्यूट करना है तो हमें पूरे के पूरे प्रोसेस को मेन मेमोरी के अंदर लोड करना है। लेकिन वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्या कहता है, there is there is no need to load the entire process into the main memory, so we can just put some of the portion of the process into the main memory, still we are able to execute that particular process. So as the name suggests, virtual means which doesn't exist in real, जो reality में exist नहीं करती, but still it will give an illusion to the user that we are having some extra memory, and with the help of that extra memory we will be able to run the process of any size. So I was just giving you some example that if suppose my RAM is 4 GB and my process, or suppose if I want to play any game of 6 GB, then it is also possible to run that game of 6 GB on 4 GB machine with the help of virtual memory system. So these are some of the contents of this particular chapter, which we will discuss in detail. And the main objective of this chapter is to describe the benefits of the virtual system, to explain the concepts of demand paging and page replacement algorithms and allocation of page frames, and finally to discuss the principle of the working set model. So background I have already discussed that to run any program or any process, entire process must be loaded into the RAM completely. So अगर हमें किसी भी process को execute करना है, चाहे वो non contiguous memory allocation हो चाहे contiguous सो नॉन कॉन्टिजियस के केस में भी अगर हम पेजेस में भी डिवाइड करते हैं तो सारे के सारे पेजेस इक्यूब दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. बट what virtual memory concept says, virtual memory is a technique that allows the execution of the processes that are not completely in the main memory. तो हम process उन processes को भी execute कर सकते हैं जो completely exist नहीं करते main memory में. So virtual memory का concept क्या बोलता है, just load only those pages or that portion of the process which is required. So this is the major concept of virtual memory. So मैं पेजिंग की बात करूं, so in the case of paging also we need not to put, or we need not to load all the pages into the main memory. Only those pages which are required to implement it will be loaded into the RAM. So these are the advantages of using the virtual memory system. So here we will load only that portion which is required, and definitely there may be many cases where my process size will be greater than the main memory size. So in that case also we will be able to execute those processes with the help of virtual memory concept. And definitely more and more processes can be loaded into RAM, because now we are not loading all the pages or entire process, we are loading only few selected pages of the process. तो अगर मेरे पास तीन अलग अलग प्रोसेसेस हैं P1 P2 P3, सभी के चार चार पेजेस हैं, तो मुझे सारे के सारे पेजेस लोड नहीं करने हैं. अगर मेरे को P1 को एग्जीक्यूट कराना है, सो आई कैन लोड ओनली the required pages of process P1, required pages of process P2, and required pages of process P3. So this is how the virtual memory concept can help us to execute more and more processes
at a time, as well as we will be able to execute those processes also whose size is greater than the main memory size. Now, virtual memory concept can be implemented with the help of demand paging and demand segmentation. So demand segmentation की हम इतनी बात नहीं करते. Demand paging is the major topic which we have to discuss. So just before that, demand paging, this is the diagrammatic representation of virtual memory. So virtual memory एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती. इट इज जस्ट एन इल्यूजन टू द यूजर कि हाँ मेरे पास मेन मेमोरी से भी ज्यादा मेमोरी अवेलेबल है, और अगर मेरे प्रोसेस का साइज रैम के साइज से भी ज्यादा है देन डेफिनेटली वी नीड नॉट टू वरी. हमारे पास एक वर्चुअल मेमोरी है जिसकी हेल्प से हम उस किसी भी प्रोसेस साइज को एग्जीक्यूट करा पाएंगे. सो दिस इज जस्ट द बेसिक ऑफ वर्चुअल मेमोरी स्पेस. नाउ द मेजर थिंग इज डिमांड पेजिंग. सो डिमांड पेजिंग वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को हम डिमांड पेजिंग की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो व्हाट इज डिमांड पेजिंग? दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. So basically demand paging, as the name suggests, is only load those pages into the RAM whose demand is there. तो जिस पेज की डिमांड हो, जिस पेज को CPU एग्जीक्यूट करना चाहता हो, सिर्फ उसी पेजेस को हम RAM में एग्जीक्यूट लोड करेंगे rather than loading the entire or all the pages of that particular process. So if we want to execute any program, we have to load that particular program from hard disk to main memory. So there are two different options available. One option is to load the entire program into the RAM, and second option is to load only those pages which are needed. So this particular technique is known as demand paging. So in demand paging, pages are loaded into the RAM only when they are demanded during the program execution, and pages that are never accessed are never loaded into the physical memory. So basically virtual memory का concept क्या बोलता है कि भाई सारे के सारे pages को मत load करो, जिन pages की requirement है सिर्फ उन्हीं pages को load करो. जैसे जैसे CPU उनकी demand करता रहता है तो सिर्फ वही pages को हम RAM में रखेंगे. तो demand paging के भाई बहुत सारे benefits होंगे. memory पूरी ऑक्यूपाई नहीं होगी, लेस मेमोरी की नीड होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को हम रैम के अंदर रख सकते हैं, बिकॉज हम कंप्लीट प्रोसेस को नहीं रख रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम सिर्फ पेजेस को, सिलेक्टेड पेजेस को रख रहे हैं. सो हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग भी इंक्रीज हो जाएगी. एंटायर प्रोसेस नहीं है लेकिन प्रोसेस के पेजेस को हम रैम में रख सकते हैं. एंड डिमांड पेजिंग इज सिंपली जस्ट लाइक पेजिंग प्लस स्वैपिंग, बिकॉज हमें पेजिंग वाला कंसेप्ट ही लगाना है लेकिन उसमें हमें क्या ऐड कर देना है, स्वैपिंग को ऐड कर देना है. तो जिन पेजेस की हमें रिक्वायरमेंट है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैप इन कर देगा मेन मेमोरी के अंदर, और जिन पेजेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी उन पेजेस को हम स्वैप आउट कर देंगे मेन मेमोरी से. दिस इज द एग्जांपल. सो यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव आवर secondary storage device, we have our hard disk, there are 24 pages. So some of the pages are swapped out, whose execution will be completed, and some of the pages, page 17, 18 and 19 are swapped in. So jinki requirement hai, only those pages would be required by the operating the RAM. So only those pages will be swapped in. So ये काम यहाँ पे कौन करेगा? तो भी हमने सीखा था एक स्वैपर होता है. तो यहाँ पर हमारे पास एक लेजी स्वैपर का कंसेप्ट है. सो लेजी स्वैपर इतना लेजी है कि वो पेज को तभी स्वैप इन या स्वैप आउट करेगा जब उसकी डिमांड होगी, जब सीपीयू उसकी डिमांड करेगा. सो अ लेजी स्वैपर नेवर स्वैप्स अ पेज इनटू द मेमोरी अनलेस दैट पेज विल बी नीडेड. सो स्वैपर यहाँ पे हम इसको नहीं बोलते, स्वैपर की जगह एक और टर्म हम यूज कर रहे हैं, पेजर. सो बेसिकली पेजर इज यूज्ड टू swap the pages from or to the memory, and basically pager is concerned with the individual pages of a process. So with the help of pager we used to put pages out of the RAM, or we bring the pages into the RAM. Okay, so I was talking about valid and invalid bits. So we have learned this concept also. So basically demand paging is also equal to the paging concept, where we used to maintain the page table. So with each entry of the page table, a valid bit or invalid bit is associated. So अगर हम किसी भी बिट को वैलिड सेट कर रहे हैं तो वैलिड का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर पेज एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, एज वेल एज वो पेज हमारा मेन मेमोरी के अंदर ही है.
और अगर हम बिट को इनवैलिड सेट कर रहे हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, सो दैट मीन्स या तो वो पेज वैलिड नहीं है, वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो वो हमारा इस टाइम मेन मेमोरी में नहीं है, वो हार्ड डिस्क के अंदर ही है. सो दिस इज व्हाट valid and invalid bit represent. So this is the example of a page table snapshot where some of the pages and their corresponding frames are valid, whereas some of the bits are invalid. So you can see here, this particular diagram represents, on the right hand side we used to have a hard disk, and in our hard disk we used to have some pages. There are 8 different pages, and the content are the alphabets from A to H. And there are 8 different pages which are numbered from 0 to 7. But here you can see in demand paging, सारे के सारे पेजेस हमारे मेन मेमोरी के अंदर लोड नहीं है, सिर्फ 3 ही पेजेस हमारे लोड हैं, जिसका कंटेंट क्या है, ए, सी एंड एफ. सो अगर ये कॉन्टिजियस या नॉन कॉन्टिजियस या सिंपल पेजिंग होती तो हमें इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए सारे के मेन मेमोरी में लोड करना पड़ता. लेकिन वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट, पेजिंग डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है, ओनली लोड दोज पेजेस इनटू द रैम दोज आर रिक्वायर्ड. बाकी हमें अननेसेसरीली सारे पेजेस को लोड करने की नीड नहीं है. सो हियर यू कैन सी आउट ऑफ 8 पेजेस ओनली 3 पेजेस आर लोडेड इनटू द मेन मेमोरी. ए वाला पेज है, सी वाला पेज है एंड एफ वाला पेज है. एंड सिमिलरली द पेज टेबल विल बी मेंटेन्ड. सो यू कैन सी पेज नंबर 0. तो हमेशा हमारे जो पेज टेबल है, पेज टेबल का इंडेक्स क्या होता है, हमारा पेज नंबर होता है. सो यू कैन सी पेज नंबर 0 हमारा फ्रेम नंबर 4 पर है, और वो एक वैलिड एड्रेस है, वैलिड पेज है. सिमिलरली पेज नंबर 1 अभी हमारा मेन मेमोरी में नहीं है, बी वाला, तो उसके लिए आगे हमने फ्रेम नंबर को एम्प्टी छोड़ दिया है और एक इनवैलिड बिट सेट कर दिया है. तो इनवैलिड बिट क्या बताती है, या तो वो पेज नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर पेज नंबर 1 तो डेफिनेटली है, लेकिन वो मेन मेमोरी में नहीं है, अभी वो हार्ड डिस्क में ही है. सिमिलरली यू कैन सी पेज नंबर 2 whose content is C, it is loaded into the main memory. So page table में उसकी entry है. And similarly F is there, so F is page number 5, so page number 5 is there on frame number 9, so it is also a valid bit. So I hope the concept is clear. So बाकी सब कुछ सेम होगा, पेजिंग की तरह ही हम पेजेस को लोड कर रहे हैं मेमोरी में, पेज टेबल मेंटेन कर रहे हैं, पेज टेबल हमें कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर बता रहा है, हम वैलिड इनवैलिड बिट से मेमोरी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं. लेकिन जो मेजर डिफरेंस है यहाँ पर, हमें सारे के सारे पेजेस को लोड करने की नीड नहीं है. डिमांड पेजिंग में ओनली दोज पेजेस विल बी लोडेड जिनकी डिमांड है, जिनकी सीपीयू को नीड है. And now this is the last concept for today and most interesting concept is page fault. तो भाई पेज फॉल्ट किसे बोलते हैं, अगर सीपीयू ने किसी पेज की डिमांड की और वो वाला पेज हमारा मेन मेमोरी में अगर नहीं है, देन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज पेज फॉल्ट. तो यहाँ पर देखो, अगर सीपीयू पेज नंबर 0 की या फिर 2 की या 5 की अगर डिमांड करेगा, तो हमारे पास ए, सी और एफ हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर हैं, तो उस केस में पेज फॉल्ट नहीं होगा. लेकिन अगर सीपीयू बाकी किसी पेज की, पेज नंबर 1 की या पेज नंबर 3 की रिक्वायरमेंट है उसे, तो वो हमारे मेन मेमोरी में नहीं है. सो इफ सीपीयू ट्राइज टू access the B content or D content, then that there will be a page fault. So page fault simply means अगर सीपीयू किसी पेज की रिक्वायरमेंट कहता है, उसे वो पेज चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन वो पेज कहाँ नहीं है, मेन मेमोरी में नहीं है, देन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज page fault. So if there is a reference to a page, first reference to the page will trap to the operating system, and that particular situation will be known as page fault. So I'm just stopping myself here today, and this is all what we have to discuss in today's lecture. So if anyone having any doubt regarding anything whatever I have discussed, you can ask me. Any doubt, anyone? Okay, okay.
Okay, so just give me 2 minutes for attendance. रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो जिसने भी स्टार्ट की थी।